we discussed about gene mutation disorders, where we discussed first disease as alkaptonuria. If you recall, alkaptonuria is an autosomal recessive disorder, a Mendelian disorder which is an autosomal recessive type, and it is responsible for accumulation of a metabolic byproduct called homogentic acid or alkapton in body or body tissues, which results in its release in urine, right? And the reason behind it is absence of an oxidase enzyme due to a defective gene. The second disease in a sequence is phenylketonuria. As you can see clearly, its name is very much familiar or say similar to alkaptonuria because it is somewhat related to alkaptonuria, but it is different in an enzyme that is absent. If you recall, in alkaptonuria, the absence of enzyme, oxidase enzyme, causes the disease. Here, the enzyme that is responsible for enzyme whose absence causes the disease is phenylalanine hydroxylase. So give the emphasis on the name phenylalanine hydroxylase. This enzyme's absence is responsible for causing a disease called phenylketonuria. The common thing that this disease shares with the alkaptonuria is its nature. Means like that of alkaptonuria, phenylketonuria is also an autosomal recessive disorder. Is it okay? Means this disease also shows the similar inheritance. This disease will also occur only in those people who are having both the alleles that are responsible for causing disease. Single allele will not result in disease as it is a recessive disorder. Now, what exactly happens in a disease? Then normally this enzyme is responsible for converting phenylalanine, a kind of aromatic amino acid, into tyrosine, that is a kind of another aromatic amino acid. मतलब normally phenylalanine को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी में किस एंजाइम की जरूरत है? phenylalanine hydroxylase. लेकिन अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो या डिफेक्टिव जीन की वजह से ये एंजाइम ना बन पाए तो ये phenylalanine टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और अक्यूमुलेट होगा या एक्सक्रीट होगा इन यूरिन. वो विल एक्सक्रीट इन यूरिन एक्सेस phenylalanine क्योंकि उसका कन्वर्शन टायरोसिन में नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ phenylalanine hydroxylase एंजाइम. तो ऐसा अगर हुआ तो क्या होता है? ये आगे आप देख सकते हो कि बेबीज born with such defect are normal at birth, but within few weeks, कुछ हफ्तों में उनकी बॉडी में क्या accumulate होना शुरू हो जाता है? phenylalanine. Get the reason correct, क्योंकि ये नहीं है, right? So it impairs their brain development. Brain development properly नहीं हो पाती and hence such babies when develop or when grew up they are mentally retarded. ठीक, उनकी मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती. और अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पिगमेंटेशन कम होता है क्योंकि टायरोसिन ये जो अमीनो एसिड है ये हमारा मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्योंकि फिनिलैलानिन से टायरोसिन नहीं बन पा रहा पिगमेंटेशन जो है वो कम होता है या नहीं होता. देन स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि एक्जेमा भी एक प्रोमिनेंट सिम्टम है जो हमको phenylketonuria में देखने को मिलता है. ठीक, इसी तरह से अल्बिनिज्म, दिस इज द थर्ड डिसऑर्डर विच इज बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरी. डोंट मिस दिस, ऑटोसोमल रेसेसिव. अभी तक पढ़े हुए ये दोनों भी ऑटोसोमल रेसेसिव थे और ये तीसरा वाला अल्बिनिज्म भी ऑटोसोमल रेसेसिव है, लेकिन हर बार चेंज कुछ हो रहा है. तो जीन, पहली केस में जीन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए था, दूसरी केस में phenylalanine hydroxylase के लिए, और अब अल्बिनिज्म में कौन से एंजाइम का अब्सेंस रिस्पॉन्सिबल है? टायरोसिनेज. Albinism, it's a very common condition where
स्किन पिगमेंटेशन इज लॉस्ट, या स्किन में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि मेलानिन नहीं बन पाता। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा, मेलानिन बनने के लिए रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड है टायरोसिन, और टायरोसिन अमाइनो एसिड को मेलानिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है टायरोसिनेज। एज हियर यू कैन सी, दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट फ्रॉम dihydroxyphenylalanine, and this dihydroxyphenylalanine is obtained from tyrosine, okay, with the help of an enzyme tyrosinase। अगर टायरोसिनेज absent रहा तो इसी वजह से मेलानिन नहीं बन पाएगा, और मेलानिन नहीं बना तो पर्सन या इंडिविजुअल के स्किन में पिगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा, और ऐसे ही लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन हेयर्स, स्किन एंड इवन आईज में अगर देखने को मिले तो हम उस कंडीशन को अल्बिनिज्म कहते हैं। इज इट ओके? और अल्बिनिज्म भी अल्केप्टोन्यूरिया और फिनिलकीटोन्यूरिया की तरह एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट डिसीज उसी कैटेगरी में, मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव कैटेगरी में जो आता है उसका नाम है टे-सैक्स सिंड्रोम। ठीक, अभी तक के 3 डिसऑर्डर्स की ही तरह टे-सैक्स सिंड्रोम का भी रीजन है, मतलब नेचर जो है वो है ऑटोसोमल रेसेसिव, लेकिन रीजन अलग, मतलब जीन डिफरेंट। इफ यू सी, Tay-Sachs syndrome occurs due to accumulation of a fatty compound, lipid compound called N-acetyl-hexosaminidase. Get this thing? A compound that accumulates has a name, N-acetyl-hexosaminidase, in brain tissue or neural tissue. Okay, and it is by nature an autosomal recessive trait where affected individuals show severe damage in brain and spinal cord, means overall CNS, central nervous system. As you know that brain and spinal cord together forms CNS, central nervous system. They do not survive for long periods of time and generally die within 4 to 5 years after the occurrence of a disease. The name is Tay-Sachs disease or syndrome. Next disease in a sequence which again belong to the same category. Why we have done this? कि confusion ना हो, अभी हम एक ही तरह के disorders पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही नेचर के, अल्केप्टोन्यूरिया, फिनिलकीटोन्यूरिया, अल्बिनिज्म, Tay-Sachs syndrome, and this one now is Gaucher's disease. It is also autosomal recessive. तो कॉमन बात क्या है, अभी तक के डिसऑर्डर्स में सब के सब ऑटोसोमल रेसेसिव है, और डिफरेंट बात क्या है, हर एक डिसऑर्डर का रीजन या जीन रेस्पॉन्सिबल अलग है। जैसे यहाँ पे कौन सा प्रोटीन या कौन सा जीन डिफेक्टिव है, जो जीन ये एंजाइम बनाता है, नाम ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज नाम का एंजाइम अगर ना बन पाए या डिफेक्टिवली बने बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन जीन, तो रिजल्टेंट डिसीज है गाउचर्स डिसीज। इज इट ओके? और यहाँ पे क्या होता है, तो आप देखो, देयर इज अ डिफेक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, इट इज अ काइंड ऑफ लिपिड, राइट, और से ग्लाइकोलिपिड, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड का कॉम्बिनेशन है सेरेब्रोसाइड। और सेरेब्रोसाइड कहते हैं इसलिए है बिकॉज इट ऑकर्स इन cerebral or say brain tissue, that's why they are called cerebrosides. It's a kind of fatty compound or lipid in combination with carbohydrates, और इसको तोड़ने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, जिसका डिफेक्टिव प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन विल लीड टू गाउचर्स डिसीज। इज इट ओके? अब इसमें होता क्या है, तो पर्टिकुलरली ब्रेन टिश्यू में अक्यूमुलेट और बॉडी टिश्यू में क्या अक्यूमुलेट होंगे,
cerebrocytes, because of which there is an enlargement of liver and spleen, which are very important organs of our organ system, right? So just have a proper look at these two before we move on to next group of diseases or next type of diseases. Now, the next disease is very commonly known disease, which is known to many, right? And there is a mention of this disease here and there in different topics, that is sickle cell anemia, या जिसको शॉर्ट में SCAB लिखते हैं, राइट? सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो ये भी एक ऑटोसोमल डिसीज है या ऑटोसोमल ट्रेट है, जिसका प्रिंसिपल सिम्टम है इरिथ्रोसाइट्स का इलोंगेटेड हो जाना। हम सबको पता है कि नॉर्मली इरिथ्रोसाइट्स इन्यूक्लिएटेड होती है विदाउट न्यूक्लियस एंड सर्कुलर इन आउटलाइन, बट अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाए तो यही आरबीसीज स्पिंडल शेप या इलोंगेटेड बन जाती है, जिनका सरफेस या शेप चेंज हो जाता है, नॉर्मल की जगह इलोंगेटेड या एबनॉर्मल। अब ऐसी जो स्पिंडल शेप्ड या इलोंगेटेड आरबीसीज है या सिकल शेप्ड आरबीसीज है, ये अपना काम मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने का काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, राइट? जो कि नॉर्मल आरबीसीज का काम है वो नहीं कर पाती, तो उसमें सेकेंडरी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो फिर इसका रीजन क्या है? आरबीसी अपना शेप क्यों चेंज करती है, नॉर्मल से इलोंगेटेड क्यों बन जाती है? तो उसका रीजन है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का एक प्रकार जिसको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि नॉर्मल नाइट्रोजन बेस की जगह कोई और नाइट्रोजन बेस जीन के किसी पोजीशन पे इनकॉर्पोरेट होना, जिस वजह से नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ जीन का चेंज होना, जिसकी वजह से नॉर्मल की जगह डिफेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस होना। अब यहाँ पे प्रोटीन इन क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन, अ वेल नोन प्रोटीन, जिसको हम ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन भी कहते हैं, राइट? अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की तरफ हम ध्यान से देखें तो हीमोग्लोबिन में कुल मिला के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 अल्फा टाइप की और 2 बीटा टाइप की। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, ये जो बीटा चेन है, अल्फा और बीटा में से हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बन पाता, मतलब डिफेक्टिवली बनता है। और क्योंकि आरबीसी के पूरे सेल में 90% से भी ज्यादा वॉल्यूम हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करता है, अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो ओवरऑल आरबीसी का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, जिस वजह से सिकल सेल एनीमिया नाम का डिसीज होता है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। जस्ट हैव अ वेरी मच फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ दैट इज रिटन right from the first thing. It is caused by formation of defective hemoglobin that is represented as HbS. Okay, as you can see, this defective hemoglobin is formed due to defective gene producing, as I said, beta chain of a hemoglobin. ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि नॉर्मली जो बीटा चेन है उसकी कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, ठीक?
जो कोडॉन होता है, कोडॉन मतलब mRNA का पर्टिकुलर सेगमेंट जो एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, वो होना चाहिए GAG। अगर GAG ये कोडॉन होगा तो 6th पोजीशन पे, कौन सी 6th पोजीशन पे, बीटा चेन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड आएगा जो कि एक नॉर्मल चीज है। लेकिन बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ये A अगर रिप्लेस हो जाए U से तो GAG हो जाएगा GUG, मतलब कोडॉन चेंज हो गया। और इस कोडॉन के चेंज होने की वजह से जहां GAG ये कोडॉन ग्लूटामिक एसिड को इनकॉर्पोरेट करवा रहा था, अब नया जो कोडॉन है GUG वो वैलिन को इनकॉर्पोरेट करवाएगा। मतलब होगा ये कि बीटा चेन में 6th पोजीशन पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन अब कौन होगा, वैलिन। अगर हम प्रॉपर्टीज वाइज भी देखें तो ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक अमाइनो एसिड है और वैलिन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। तो इसी वजह से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है बीटा चेन का और हेंस हीमोग्लोबिन का वो चेंज होता है। और इसी का रिजल्टेंट इफेक्ट हमको दिखता है कि आरबीसीज का शेप राउंड की जगह इलोंगेटेड बन जाता है, दैट इज सिकल शेप बन जाता है। और उसी वजह से ये डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें आगे इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होंगे, तो बिकॉज आरबीसीज बिकम सिकल शेप दे कैनॉट पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज, hence they clot. As a result, blood and oxygen supply to the different parts of the body gets disturbed and vital organs या important organs like spleen and brain gets damaged, right? अब इसमें इंटरेस्टिंग सी एक बात जो आगे आपको दिखेगी, क्या लिखा है यहाँ पे कि an interesting fact of the individuals affected with sickle cell anemia is these individuals are naturally immune to malaria। मतलब जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उन्हें लकीली बोलो या इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनको मलेरिया नहीं होता। अब इसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि जो मलेरिया का पैरासाइट है वो आरबीसीज के सरफेस पे अटैच होता है और उसके अंदर एंटर होता है। क्योंकि आरबीसीज का शेप चेंज होता है सिकल सेल एनीमिया में, तो मलेरिया का पैरासाइट उन चेंज हो चुकी आरबीसीज के अंदर एंटर नहीं हो पाता और इसीलिए वो इम्यून होते हैं टू मलेरिया। दैट्स द रीजन व्हाई दे आर इम्यून फ्रॉम मलेरिया। इज इट ओके? नाउ सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट या पर्सन जो है, अगर हम HB कैपिटल S और HB स्मॉल s ऐसे दो अलील्स कंसिडर करें, जिसमें से कैपिटल S वाला नॉर्मल आरबीसी बनाएगा और स्मॉल s वाला सिकल्स शेप्ड, तो फिर हमारे पास 3 जीनोटाइप होते हैं क्योंकि जीन जो है वो ऑटोसोमल है। HB कैपिटल S, HB कैपिटल S, ये पर्सन पूरी तरह से नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज वाला होगा। दूसरा जीनोटाइप HB कैपिटल S, HB स्मॉल s, ये वो पर्सन है जिसको हम कहेंगे कि सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि इसके पास एक अलील नॉर्मल है और एक डिफेक्टिव। जबकि ये जो पर्सन है HB स्मॉल s, HB स्मॉल s, वो जनरली डेड होते हैं क्योंकि उनके पास दोनों में से एक भी अलील नॉर्मल नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमने, आप रिकॉल करो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हमने जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इस हेडिंग के अंदर पढ़ा था, लीथल जीनोटाइप। लीथल मतलब डेडली। अगर किसी पर्सन का जीनोटाइप इस तरह का है HB स्मॉल s, HB स्मॉल s, that genotype is responsible for death of a person, so it is called
lethal genotype. It is one of the example that we considered in Mendelian basis of inheritance. Is it okay? So have a look at it again, and you need to remember certain things like this, which codon changed to which codon, or which amino acid gets replaced by what amino acid, and which chain is involved, that is beta chain, and which position is involved, that is sixth position of the beta chain. And this is to some extent an important thing, that मलेरिया के अगेंस्ट ये इम्यून होते हैं.